Assalamu alaikum students. In this lecture we are going to study about the structure of DNA. In previous lecture we have discussed about the molecular structure of the DNA. And this lecture we are going to study about the Watson and Crick model, which is called as a double helical model of the DNA. What is the double helical model of the DNA? Double helical model is also called as a twisted ladder model. इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड लैडर। लैडर जिसको हम लोग सीढ़ी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल और ट्विस्टेड लैडर मॉडल। डीएनए इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। We have seen the nucleic acid which is present inside the nucleus are of two types, DNA and RNA. In this lecture we are going to study about the helical model which is present inside the eukaryotic nucleus, that is proposed by the two scientists, that is the Watson and Crick. So the name is given according to these scientists, Watson and Crick model of the DNA. Watson और Crick जो है दो साइंटिस्ट थे who has proposed this model which is called as a double helical model in the year 1953. This model was proposed on the basis of some previous model. That model is the experiments of the two scientists, that is the Rosalind and the Franklin. These are the two scientists, Wilkin and Franklin are the two scientists who discovered the precipitation of the DNA, who discovered the helical model of the DNA via the X-ray diffraction method. X-ray diffraction method उन्होंने 1951 में स्टडी किया था और पता चला था कि DNA जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, that DNA which is present inside the eukaryotic DNA is the coiling DNA, and they have just suggested, proposed the theory, and these two scientists are successful in 1952. So in 1953, Watson and Crick has successfully designed the helical model, coiling model of the DNA. So in this coiling model and helical model of the DNA, जहां पे क्या होता है, एक ट्विस्टेड लैडर की तरह DNA प्रेजेंट रहता है और क्या हो जाता है, कॉइल अराउंड हो जाता है to fit into a very small nucleus. And in 1962, these three scientists, that is the Watson, Crick and Franklin, these scientists in 1962 they have awarded with the Nobel Prize. In 1962 they are awarded with the Nobel Prize. Three scientists out of the four, only three scientists have awarded the Nobel Prize. And here there are some points which they suggested the helical model of the DNA. This is called as the Watson and Crick model of the DNA. These are the points. First point is the double stranded DNA. The second is the double helical model, helix, and anti-parallel one. Fourth point है complementary base pairings. Fifth is the grooves, and the sixth one is the dimensions. Let us study about the each and every point in detail. So here, this is the first point which is called as a double stranded one. DNA in the Watson and Crick model, it is made up of two strands. How these two strands are there? मैंने क्या बताया कि Watson and Crick ने से बताया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने कौन सा मॉडल स्टडी किया? दैट इज द 3D मॉडल ऑफ द DNA. इससे पता चला कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। कंसिडर दिस इज द लैडर, लैडर जिसको हम लोग सीढ़ी बोलते हैं। सीढ़ी में दो क्या रहते हैं? वर्टिकल बेस रहते हैं। दिस इज द वर्टिकल बेस, vertical bamboo or pillars are there. Here the steps are present. So here each vertical base or pillars is called as a one strand. So they have the two strands. और ये क्या हो रही है? Coil हो रही है. This is having this type of the structure. This coiling is called as a twisted ladder. इसी को हम लोग बोलते हैं twisted ladder. So this is the pillar जो कि क्या हो रहे हैं? Twist हो रहे हैं. That is called as a phosphate and sugar bond. This pillar, okay, this vertical pillar is called as a phosphate. It is made up of phosphate and sugar.
इस तरह से मैंने डायग्राम में दिखाया है, दैट इज द PS1. दिस इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड. PNS, this is called phosphate and sugar forms the backbone. क्योंकि आपकी जो स्टडी रहती है वही पिलर पे रहती है, इसी के ऊपर स्टेप्स रहते हैं. अगर ये पिलर मजबूत नहीं है, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, लैडर टूट जाएगी. सो दिस पिलर इज द मेड अप ऑफ phosphate and sugar backbone. So this phosphate and sugar, it forms the backbone. And here due to this model, the two polynucleotides, मैंने क्या बताया कि दो स्ट्रैंड्स रहते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, कॉइल होते हैं अबाउट वन इमेजिनरी एक्सिस. दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस. दे आर कॉइलिंग अराउंड द इमेजिनरी एक्सिस लाइक अ ट्विस्टेड लैडर इन अ राइट हैंडेड मैनर. किस तरह से ट्विस्ट हो रहे हैं, राइट हैंडेड मैनर में ट्विस्ट हो रहे हैं ऑन वन इमेजिनरी एक्सिस. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, किस तरह से है, डबल स्ट्रैंड से है. अब हमको देखना है कि ये स्ट्रैंड किस तरह से बने हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रैंड्स. ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनते हैं, इन द डीएनए. हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए से बनते हैं. और न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए किस तरह से बनते हैं, तीन चीजों से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए. These nucleotides are made up of three basic units. The first one is the sugar, the second one is the nitrogen bases, and third is the phosphorus or phosphate. Okay, sugar कौन सी present रहती है, that is the deoxyribose sugar, pentose sugar. Okay, at the first carbon क्या attached रहता है, nitrogen base. This attached by the glycosidic bond. और फिफ्थ कार्बन जो रहता है आउट ऑफ द रिंग होता है, इट इज अटैचेस विद द फॉस्फोरस. सो दिस इज द वन न्यूक्लियोटाइड. ओके, हम अब क्या बनाने जा रहे हैं, एक स्ट्रैंड बनाने जा रहे हैं. हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे दूसरा स्ट्रैंड. सो हियर दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सॉरी दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड. लेट अस मेक अ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड. अगेन दैट इज द शुगर, डिनोट एज S. पेंटागन निकालना है, दूसरा नाइट्रोजन बेस लगा दीजिए, फिफ्थ कार्बन फॉस्फोरस. लाइक दिस यू आर प्रिपेयरिंग द polynucleotide chain. Again fifth phosphorus, fifth is the phosphorus. So this is the one polynucleotide chain. So this one polynucleotide chain is formed. अब ये क्या है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स हैं. दैट इज द, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड. दैट इज द डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. एक ही फॉस्फेट ग्रुप है. डीऑक्सी एडिनोसाइन, सॉरी डीऑक्सी थाइमोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट. देखा है हम लोगों ने, DAMP, TMP, DCMP एंड DGMP. इस तरह से ये चार न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. ये चारों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं. लेकिन डीएनए के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं. सिर्फ मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ चार दिखाए हैं. सो हियर ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. ओके, सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, दे ज्वाइन टुगेदर. अब ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह से ज्वाइन होते हैं, टू फॉर्म अ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड किस तरह से ज्वाइन होते हैं, वन न्यूक्लियोटाइड attaches to the another nucleotide. Here at the 3' end, OH group is present. In the previous lecture we have discussed this one. This OH group, this carbon is free, and this third carbon of the previous nucleotide attaches to the fifth carbon of the second nucleotide via the one bond which is called as a phosphodiester bond. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है, डबल O वहां पे प्रेजेंट रहता है. ओके, सो हियर ज्वाइन दीज न्यूक्लियोटाइड्स एंड इट फॉर्मिंग द वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब मैंने बताया कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं रहता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं. दीज आर, लेट अस डिराइव द ऑर्डर ऑफ द सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. हियर दिस वन इज द, यहाँ पे फॉस्फोरस आप लोगों को निकालना है. दिस इज द सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड.
वन इज द सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम लोगों को किस तरह से बनाना है, दिस इज द सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना है, मैंने क्या बनाया है, सिर्फ मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ज्वाइन करना है न्यूक्लियोटाइड को अगेन विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस इज द थर्ड कार्बन, फिफ्थ यहाँ पे फ्री है, ये फ्री है तो इससे अटैच कर दीजिए, ये फ्री है थर्ड कार्बन पे अटैच कर दीजिए। तो दिस इज नथिंग बट द सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बट हियर दिस whole thing, this one thing is called as a one strand. This is the one strand of the DNA. This is the second strand. This is the second strand. This strand is called as a one polynucleotide. This is the second strand. This is the second strand. Okay. This is the second again polynucleotide. But remember, these two strands are joined to one another via their nitrogen bases. Their complementary nitrogen base pairings are present. So complementary nitrogen base pairings यहाँ पे present रहती है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब एडिनाइन है तो एडिनाइन किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, गुड, थाइमिन के साथ via the 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमिन है तो एडिनाइन के साथ ज्वाइन हो जाएगा अगेन via the 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसाइन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से गुआनिन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। गुआनिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसाइन के साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड वन स्ट्रैंड, दिस इज द सेकेंड स्ट्रैंड। ज्वाइन द वाया द नाइट्रोजन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। किससे ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के नाइट्रोजन बेसिस से क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। एंड दिस ज्वाइनिंग इज कॉल्ड एज अ बेस पेयरिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ बेस पेयरिंग। ओके, द नेक्स्ट इज द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स इज नथिंग बट द हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब क्या, कॉइलिंग स्ट्रक्चर है कॉइल्ड अराउंड द वन इमेजिनरी एक्सिस। अभी क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं अब अराउंड द वन इमेजिनरी एक्सिस एंड दे लुक्स लाइक दिस वन। Okay, so this is the imaginary axis. This phosphorus and the sugar, this is the sugar. This phosphorus and the sugar will form this backbone of the coil. They are forming the backbone of the coil. यहाँ पे PS क्या रहते हैं, present रहते हैं. This is forming. But here the one thing which is not get coil, ये coil नहीं होती है, that is the base pairing and they form the steps. Okay, ये जो base pairs हैं GCTA क्या बना रहे हैं, steps बना रहे हैं and they are in a straight line. They are not get coil, but as it is रहते हैं। coil क्या हो रहा है, phosphorus और sugar हो रहा है। This coiling is basically occur. One of the best reason is that the purines और pyrimidines की वजह से क्या होती है, coiling होती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या हो रहा है, प्यूरिन्स मैंने बताया कि डबल स्टैंडर्ड है और डबल साइक्लिक नेचर के हैं और पिरिमिडिन्स क्या है, सिंगल साइकिल के। और प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। प्यूरिन का साइज बड़ा रहने की वजह से क्या करते हैं, अपने आप को ज्यादा पुल करते हैं टुवर्ड्स वन अनदर। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉस्फर बॉन्ड, दैट इज द शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। कहाँ पे प्रेजेंट था, 5th कार्बन और is sugar का bond. This bond is the highly elastic bond. Due to this highly elastic bond, it get twisted and form the coiling structure. क्या हो रहा है, coiling structure बन रहा है जिसकी वजह से दो हेलिक्स क्या हम लोगों को नजर आ रहे हैं। This one is the first helix, this one is the second helix. This is the double helix model. The third important thing is the anti-parallel strand. हम लोगों ने 2 स्ट्रैंड देखे किस तरह से बनते हैं। फर्स्ट स्ट्रैंड, अगर मैंने बताया था कि नेमिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पे 3 डैश, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन फ्री है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम और 3 डैश एंड। हियर दिस एंड एट द 3 डैश एंड पे एंड हो रहा है, नहीं, यहाँ पे 5 कार्बन फ्री है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ 5 डैश और 5 प्राइम एंड। एक जो है किस तरह से रन हो रहा है, वन स्ट्रैंड इज रनिंग एट 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे क्या है, 5 डैश पे फ्री है,
5 कार्बन पे फ्री है, हियर यहाँ पे 3 कार्बन पे फ्री है. So the second strand is running at 5' to 3' direction. So both these strands are opposite to each other, but they are running parallelly. So these strands are called as a anti-parallel strands. So they are called as a anti-parallel. Okay. So questions आप लोगों किस तरह से पूछेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया. एक स्टैंड अगर हम लोग देंगे तो आप लोग क्या करना है, उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड बनाना है. ओके. सो दिस इज द एंटी पैरेलल स्टैंड. एंटी पैरेलल गिव्स द पोलैरिटी टू द स्टैंड. एंटी पैरेलल जो है स्टैंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, आपके डीएनए को पोलैरिटी देते हैं. Polarity means it giving the direction which end is free, which end is having a free end. This is the 3' end which is free. This is the 5' end which is free. तो किसी से अटैच नहीं है. So these anti-parallel strand giving the polarity to the each polynucleotide. So these are the 3 points. Double stranded. हर एक स्टैंड के बारे में लिखना है. स्टैंड किससे बने हुए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं. एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करो, इस पे ज्वाइन करो न्यूक्लियोटाइड्स को, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना दो. नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके. देन हेलिकल मॉडल किस वजह से हो रहा है, टू द बैकबोन, दैट इज द फॉस्फोरस एंड शुगर बैकबोन. एंड वन मोर थिंग, sugar phosphate bond is highly elastic bond. It pushes the sugar towards itself. That's why it coil around the one imaginary axis. That was given by the Watson and Crick. The next most important thing, न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में क्या है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरस प्रेजेंट है. शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है. नाइट्रोजन बेस दैट इज द एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसाइन. ये 4 ही नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. 2 प्यूरिन्स और 2 pyrimidines. Next about the phosphorus, again in the form of phosphoric acid. तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन, डीऑक्सीएडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, देन मोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड थाइमोसाइन मोनोफॉस्फेट. 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और चारों न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे. और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कॉइल होते हैं ड्यू टू दीज बॉन्डिंग, दैट इज शुगर फॉस्फेट बॉन्डिंग की एफिनिटी ज्यादा रहने की वजह से. सेकंड, प्यूरिन्स का लार्जर साइज है, इसीलिए क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं. दिस इज द डबल हेलिकल मॉडल. और नेक्स्ट क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. क्या करते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में, आप लोगों को बताना है 3' एंड यहाँ पे फ्री रहता है, 5' एंड यहाँ पे फ्री रहता है. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3' to 5' रन होगा. सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड 5' to 3' रन होगा इन अपोजिट मैनर. दिस इज कॉल्ड एज ए एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. इसी की वजह से क्या मिलती है, पोलैरिटी मिलती है. पोलैरिटी से पता चलता है कि कौन सा साइड पे हम लोगों को फ्री OH ग्रुप मिलेगा. दैट इज द पोलैरिटी और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. दीज आर द 3 पॉइंट्स. So next, switching towards the 4th, 5th and 6th point. So the next point is the 4th point, which is called as a complementary base pairing. In previous lecture, we have studied about the 2 strands, about the DNA's 2 strands. First strand of the DNA attaches to the second strand of the DNA via their nitrogen bases. एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से अटैच है, किस तरह से, via their nitrogen bases. These nitrogen bases are attaches to one another via the one specific pairing, which is called as a complementary base pairing. यहाँ पे क्या होते हैं, प्यूरिन्स अटैच रहते हैं pyrimidines से. Purines are attached to the pyrimidines. So we have the 2 purines, that is the adenine and guanine, pyrimidine, cytosine and thymine. एडिनाइन और गुआनिन जो है दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. एडिनाइन एंड थाइमिन एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, डबल बॉन्ड अटैच हो जाते हैं. सो इन बिटवीन द 2 नाइट्रोजन बेसेस देयर इज अटैचमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दीज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द वीक बॉन्ड. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट रहते हैं, 2 नाइट्रोजन बेसिस के. किन 2 नाइट्रोजन बेसिस के,
एक स्ट्रैंड और दूसरा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड एक दूसरे से नाइट्रोजन बेसिस के थ्रू अटैच हो जाते हैं। और ये नाइट्रोजन बेसिस किस तरह से रहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में एडिनाइन थाइमिन के साथ अटैच हो जाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। गुआनिन जो है साइटोसाइन के साथ अटैच हो जाएगा बाय द 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड रिमेंबर इन द डीएनए वन मोर थिंग इज देयर। ये तो हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द प्यूरिन्स एंड pyrimidines. And one more thing is in the DNA is that number of purines are equal to number of pyrimidines. Number of purines are equal to the number of pyrimidines. इसका मतलब क्या है? pyrimidines और number of purines. Purines कौन कौन से हैं? एडिनाइन और गुआनिन. Next pyrimidines cytosine and thymine. Number of purines means addition. इन दोनों का सम क्या है? इक्वल है. नंबर ऑफ प्यूरिन्स एडिनाइन और गुआनिन साइटोसाइन और थाइमिन से क्या है? इक्वल है. दिस रूल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट चारगॉफ. दिस इज कॉल्ड एज द चारगॉफ्स रूल. चारगॉफ्स रूल. चारगॉफ्स रूल्स नंबर ऑफ प्यूरिन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ pyrimidines. तो ये क्या है? चारगॉफ रूल, जो कि सिर्फ डीएनए पे अप्लाई होगा. डीएनए पे क्या होगा? अप्लाई, जो कि यूकैरियोटिक डीएनए है. इसके हिसाब से अगर मैं क्या कर रही हूं, A प्लस जी डिवाइडेड बाय C प्लस टी इज इक्वल टू 1. इसी को मैं नीचे लेकर आ रही हूं. सो देयर रेशियो मीन्स प्यूरिन्स टू pyrimidine रेशियो. प्यूरिन्स टू pyrimidine. A प्लस जी क्या है? ये प्यूरिन्स. एडिनाइन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन्स है. C प्लस टी दैट इज द साइटोसिन और थाइमिन क्या है? pyrimidines है. So ratio of purines and pyrimidines is equal to 1 only in the DNA. सिर्फ डीएनए में क्या रहता है? नंबर ऑफ प्यूरिन्स और pyrimidines क्या रहते हैं? सेम रहते हैं. उनका रेशियो क्या रहेगा? 1 रहेगा. क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे आप लोगों को? क्वेश्चन देंगे इस तरह से कि एडिनाइन एक one DNA is there. In this one the quantity of the adenine is about 75. एडिनाइन कितना है? 75. राइट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द थाइमिन. जितने एडिनाइन रहेंगे उतने क्या करेंगे? एडिनाइन थाइमिन के साथ ज्वाइन हो जाएंगे. अगर 75 एडिनाइन है तो ऑब्वियसली थाइमिन कितने रहेंगे? 75. नेक्स्ट आप लोग क्या देंगे? देन क्वांटिटी देंगे अबाउट द गुआनिन की. गुआनिन की क्वांटिटी देंगे आपको अबाउट. गुआनिन वहां पे प्रेजेंट है अबाउट 50. जितने गुआनिन है उतने क्या रहेंगे? गुड साइटोसाइन रहेंगे. तो इससे आप पता कर सकते हैं कि एडिनाइन और गुआनिन कितने होंगे? 75, 50. थाइमिन और साइटोसाइन अगेन 75, 50. तो कितने हो गए? 75, 75, 150, 150, 200, 250. तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? 250 न्यूक्लियोटाइड. इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ प्यूरिन्स भी यहां से निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ pyrimidines से. ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द चारगॉफ रूल्स. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए. सो नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidines. एंड 2 स्ट्रैंड्स, ये 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से किस तरह से ज्वाइन होते हैं? वाया द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से. 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच है, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच है वाया द नाइट्रोजन बेसिस. The second is the Goose one. अब Goose क्या है? Due to the helical coiling, अब क्या हो रहा है? Consider this one is the Baxter and Crick model. This is the imaginary axis. और ये क्या है? Sugar और phosphate bond क्या कर रहे हैं? Coil हो रहे हैं around one imaginary axis in a right-handed manner. इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे right-handed helix. This is the right-handed helix. Right-handed हेलिक्स. ओके, क्या हो रहा है? ये राइट हैंड के मैनर में क्या हो रहे हैं? कॉइल हो रहे हैं. ड्यू टू दिस राइट हैंडेड मैनर कॉइलिंग वन मेजर, ओके, ड्यू टू दिस राइट हैंडेड मैनर कॉइलिंग अराउंड वन इमेजिनरी एक्सिस वन मेजर डिप्रेशन विल फॉर्म. दैट मेजर डिप्रेशन इज कॉल्ड एज अ मेजर ग्रूव. ओके, ये दिखाया आप लोगों को डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ मेजर ग्रूव. Opposite to this one, a minor depression is there.
अगर इक्वली कॉइल हो रहे हैं तो स्प्रिंग के जैसे नजर आएंगे, ये अनइक्वली कॉइल हो रहे हैं राइट हैंडेड मैनर। ओके, एक रोप है, सॉरी एक इमेजिनरी आपके पास एक रॉड है, उसके रॉड के अराउंड क्या कर रहे हैं, एक रोप को कॉइल कर रहे हैं राइट हैंडेड मैनर। तो रोप में क्या हो जाएगा, एक जगह बड़ा हो जाएगा लेंथ, एक जगह छोटा हो जाएगा। दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज अ मेजर ग्रूव एंड दिस इज कॉल्ड एज अ माइनर ग्रूव। दिस इज द मेजर ग्रूव, दिस एंगल इज द मेजर एंगल, दिस इज द माइनर ग्रूव। इस तरह से यहाँ पे दो ग्रूव्स बनते हैं, दैट इज द मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। एंड आफ्टर दैट वन, दिस इज द मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। तो ग्रूव क्या होते हैं, दो टाइप के रहते हैं, मेजर एंड minor groove is there. This major and the minor groove is having the one angle of twisting that is about 11 to 12 angstrom. कितना angle of twisting है इसका, 11 to 12 angstrom के angle of twisting पे ये रहते हैं। That is the major groove and minor groove. And last is the dimensions. What about the dimensions? Dimension is the major breakthrough in the science. सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू जो हुआ दैट इज द अबाउट द डायमेंशंस। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द डीएनए। द विड्थ ऑफ द डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सेल। यूकैरियोटिक का अगर आप लोग कोई भी सेल लेंगे तो विड्थ जो रहेगी, विड्थ जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, दैट इज कांस्टेंट इन द डीएनए एंड दिस इज अबाउट द 20 एंगस्ट्रॉम। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि मैंने क्या किया है, ये विड्थ जिसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं, दैट इज द 20 एंगस्ट्रॉम एंड विच इज approximately equal to the 20 angstrom, जिसको हम लोग अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इट इज अबाउट 2 नैनोमीटर। ओके, सो इट इज द 2 नैनोमीटर। ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बट हियर व्हेन दे आर कॉइलिंग अराउंड द वन इमेजिनरी एक्सिस, जब ये कॉइल होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में कॉइल होते हैं, ओनली द 10 बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स कॉइल अराउंड वन turn and they are forming the one turn. Okay, so this is the one turn. यहां से लेके यहां तक जो है that is the one turn. देखेंगे आप लोग, this is the one turn. Okay, 2 rounds of the nucleotides are there, that is called as a one turn. This one turn is also called as a gyrus or one helix. Okay, इस तरह से कितने number of turns will be there, बहुत ज्यादा टर्न्स रहते हैं, लेकिन एक टर्न में स्पेसिफिकली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द वन टर्न। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ वन हेलिक्स, वन टर्न इज देयर, वन गाइरस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बार। और इसके अंदर क्या रहते हैं, कितने बेस पेयर्स रहते हैं, तो दिस इज द बेस पेयर्स। ओके, अगर हम लोग एक टर्न लेंगे तो इस तरह से 80 के कितने टर्न रहते हैं, अबाउट 10 base pairs are present, 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 10 base pairs are present in one turn. एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स रहते हैं और एक टर्न हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी लेंथ क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ है। अगर मैं इसे खोलूंगी तो ये कितना रहेगा, 34 एंगस्ट्रॉम, और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। 10 बेस पेयर्स is present और पूरी की लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, अप टू दिस इट इज हैविंग द 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे मैंने बताया कितने हैं, 10। सो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकेंगे, यस। सो डिस्टेंस बिटवीन द ईच बेस पेयर, दिस इज द वन बेस पेयर, दिस इज द सेकंड बेस पेयर। दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस क्या रहेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस शुड बी द 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से किस तरह से अटैच रहते हैं, कितने डिस्टेंस पे दोनों न्यूक्लियोटाइड्स, एट द 34 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द फर्स्ट बेस पेयर, दिस इज द सेकंड बेस पेयर। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से 3.4 अप टू द 10, 34 एंगस्ट्रॉम के क्या हो जाता है, एक वन टर्न हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं इन ईच टर्न। इट इज अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन आप लोग किस तरह से पूछते हैं, ओके, वन डीएनए इज देयर विच इज हैविंग द 1000 बेस पेयर्स। ओके, सो हाउ मेनी टर्न्स आर प्रेजेंट,
34 एंगस्ट्रॉम की क्या रहती है, सिंगल टर्न रहती है। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर 1000 बेस पेयर्स है तो कितना रहेगा, गुड, दैट इज द 101। 100 क्या है, टर्न्स यहाँ पे प्रेजेंट है। 100 टर्न, एक टर्न जो है 34 एंगस्ट्रॉम की रहेगी, तो 100 टर्न्स का कितना रहेगा, 34 इंटू 100 दैट इज द 3400 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आप लोग लेंथ ऑफ डीएनए क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम, जिसमें 10 बेस पेयर्स है, बीपी जिसको हम लोग 10 बेस पेयर्स लिखते हैं। अगर किसी में 1000 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, ओके, तो कितना रहेगा, 1000 है मतलब यहाँ पे टर्न कितने रहेंगे, 100 टर्न, वन टर्न में 10, तो कितने, 100 में 100 टर्न, 100 में 1000 बेस पेयर्स रहेंगे, तो 34 इंटू 100 मीन्स 3400 एंगस्ट्रॉम क्या रहेगी, इसकी डीएनए की लेंथ रहेगी। रिमेंबर एक बेस पेयर्स में यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काउंट करूंगी, 10 बेस पेयर्स मीन्स 20 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशंस ध्यान में रखने हैं फॉर द डीएनए 1। नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, डिस्टेंस कितना है, आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन देंगे, या फिर होल डीएनए की लेंथ देंगे, इसके ऊपर से आप लोगों को बेस पेयर्स निकालने हैं। एंड देन लास्ट थिंग इज दैट द डिस्टेंस और एंगल बिटवीन द 2 सक्सेसिव बेस पेयर्स इज द 36। अभी बेस पेयर्स क्या बना रहे हैं, स्टेप्स बना रहे हैं, लैडर की, सीढ़ी की क्या बना रहे हैं, स्टेप बना रहे हैं, कि एक एंगल से क्या रहते हैं, ट्विस्ट रहते हैं। दैट एंगल ऑफ ट्विस्टिंग इज अबाउट 36 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज अ रंग्स। इसी को हम लोग क्या बनेंगे, रंग। एंगल बिटवीन द 2 सक्सेसिव बेस पेयर इज 36 डिग्री। डिग्री है मतलब क्या, एंगल। सो दिस इज द थिंग which is present inside the Watson and Crick model. Complementary base pairing, grooves and dimension. Dimensions में आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक सिंगल टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का रहता है, 10 बेस पेयर्स यानी 20 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बेस पेयर्स का क्या रहता है, डिस्टेंस कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 2 बेस पेयर्स एक एंगल के थ्रू क्या रहते हैं, ट्विस्ट रहते हैं, दैट इज द 36 डिग्री। और throughout the length in eukaryotic cell, the width of DNA is about 20 angstrom, that is the 2 nanometer. So this is the Watson and Crick model of the DNA. Next हम लोग देखेंगे about the type of DNA.